Hello students, good morning everyone. I am Mr. Harihar Maharana from Central Public Academy, Sahidwara Azamgarh, and I will teach you class 9th Geography lesson 2, the physical features of India. As in the first chapter, you have already studied the geographical location, the longitudinal extent, latitudinal extent, the neighbors of India, and the importance of the location of India in history. Now in the second lesson, we will study the major physiographic divisions of India. So, as already you have known, the land of India displays great physical variations as geologically the peninsular plateau constitute one of the oldest landmass of Gondwana land, and the Himalaya and the northern plain are the most recent landforms, and Himalayan mountain form an unstable zone. The whole mountain system of Himalayas represent a very beautiful topography with highest peaks, deep valleys and fast flowing rivers. Similarly, the northern plain, these are formed of the alluvial deposits brought down by the rivers from Himalaya. The peninsular plateau is composed of igneous and metamorphic rocks with gently rising hills and wide valleys. Now I will show you the physiographic divisions of India on the physical map. You can see the Himalayan mountain range that stretches from the basin, from the valley of Indus river up to the Brahmaputra river. The brown color and yellow color, this mountain stretch that you can see, it is the Himalayan mountain range. Next to the south, आप इसके दक्षिण में देखेंगे कि ये जो ग्रीन कलर के वास्ट प्लेन दिख रहा है, इट इज़ द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया. इट इज़ कंस्टिट्यूटेड बाय द रिवर्स ऑफ रिवर सिस्टम ऑफ इंडस रिवर, गंगा रिवर एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर. And the next third feature is the peninsular plateau. It is the tabular landform. You can see it just like an inverted triangle. This triangular landform is called the peninsular plateau. Next, the third desert, that is otherwise called Great Indian Desert, it is situated in Rajasthan, and the coastal plains. The coastal region, eastern coastal region of Bay of Bengal, it is the eastern coastal plain, and the western coastal plain is just near to the Arabian Sea. And the sixth feature is the group of islands, Andaman Nicobar Island and the Lakshadweep Islands. So these six physiographic features constitute the physiographic divisions of India. We will study one by one. So let's start from the Great Himalayas. So हिमालयन माउंटेन रेंज का सबसे प्रमुख फीचर यह है कि इट इज़ जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन. जियोलॉजी में हमारा अर्थ का क्रिएशन से लेके अब तक डिफरेंट एज में डिवाइड किया गया है और उसमें से अलग अलग लैंडफॉर्म का एज डिटरमाइन किया गया है. तो उसके हिसाब से हिमालयन माउंटेन रेंज एक बहुत यंग माउंटेन है, क्योंकि वो बहुत कम साल पहले ही वो उत्पत्ति हुआ है. एंड दिस माउंटेन रेंज रन्स इन द वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस रिवर बेसिन टू ब्रह्मपुत्र रिवर. द हिमालयस रिप्रेजेंट द लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रगेड माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड, एंड इट इज जस्ट लाइक एन आर्क विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर. हिमालय का जो लेंथ है ये 2400 किलोमीटर है और उसका विड्थ कहीं 400 किलोमीटर है कश्मीर में, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम 150 किलोमीटर है. एंड द अल्टीट्यूडिनल वेरिएशन ऑल्सो वेरी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. ईस्टर्न साइड में इसका अल्टीट्यूड थोड़ा ज़्यादा है और वेस्टर्न साइड में कम है. एंड द हिमालय कंसिस्ट ऑफ, as you can see in the map, the Himalayan mountain consists of 3 parallel ranges. ये जो 3 parallel range है हिमालय का, वो तीनों का नाम शिवालिक, हिमाचल और हिमाद्री है. शिवालिक is the outer Himalaya, हिमाचल is the lesser Himalaya and हिमाद्री is the greater Himalaya. तो हिमालय का जो इनर पार्ट है,
that is known as Greater Himalaya or Inner Himalaya. It is otherwise known as Himadri. It is the most continuous range consisting of the loftiest peak with an average height of 6000 मीटर. आप जानते हैं कि हिमाद्री रेंज जो है वो हिमालय का सबसे हाईएस्ट और लॉफ्टीएस्ट माउंटेन रेंज है, जिसका एवरेज हाइट 6000 मीटर है. और इसका फीचर्स ये है कि जितने सब ग्लेशियर्स और माउंटेन पिक्स इस रेंज में अवस्थित है, एंड इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन रिवर्स. All prominent Himalayan rivers originate in the form of glacier from this mountain range. Let's see the composition of Himadri. This part of Himalaya that is known as Himadri, it is composed of granite stone. ये जो हिमाद्री है ये ग्रेनाइट स्टोन से बना हुआ है, एंड इट इज़ एसिमेट्रिकल इन नेचर, पेरेनियली स्नो बाउंड, हमेशा के लिए इसमें बर्फ ढका हुआ रहता है. नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज, एंड यू कैन फाइंड ऑल द लॉफ्टीएस्ट हाईएस्ट माउंटेन पीक्स ऑन दिस रेंज. फॉर एग्जाम्पल Mount Everest, which is 8848 meter high, it is situated in Nepal in Himadri. Next, Kanchenjunga. As you know, Kanchenjunga is the highest mountain peak of Himalaya in India. It is 8598 meter high. Makaole Range, Dhaulagiri, Nanga Parbat, Annapurna, Nanda Devi, कामेत, नामचवरवा और गुरला मांधाता, ये सब प्रोमिनेंट माउंटेन पिक्स है जो इस माउंटेन रेंज में सिचुएटेड है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन फाइंड ऑल टाइप ऑफ ग्लेशियर्स that originate from Greater Himalaya. As you know that the Ganga river is originated from the Gangotri glacier, Yamuna river is originated from Yamunotri glacier, and both these glaciers are descended from Himadri, the Greater Himalaya or Lesser Himalaya. अब हम लोग देखेंगे कि हिमाद्री के दक्षिण में जो हिमालय के माउंटेन रेंज है उसका कंपोजिशन क्या है, उसका फीचर्स क्या है. तो हिमालय के दक्षिण में जो माउंटेन रेंज है इसका नाम है हिमाचल और लेसर हिमालय, एंड दिस रेंज इज मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स. हाईली कंप्रेस हुआ अल्टर्ड रॉक से ये हिमाचल माउंटेन रेंज बना हुआ है. इसका एवरेज हाइट 3700 मीटर से 4500 मीटर तक है, और इसका विड्थ जो है वो 50 किलोमीटर एवरेज है. और इस माउंटेन रेंज में आपको हर प्रकार के ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस एंड वैलीज देखने को मिलेंगे. पीरपंजाल रेंज इज द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज. धौलाधर, महाभारत रेंज, ये सब इस रेंज के कुछ प्रोमिनेंट माउंटेन्स है. तो इस रेंज में आपको हर प्रकार के ब्यूटीफुल वैलीज मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल कश्मीर वैली, कुल्लू, कांगड़ा, शिमला और मनाली, ये सभी हिमाचल प्रदेश के जितने सब प्रोमिनेंट हिल स्टेशंस और वैलीज है वो सब इस माउंटेन रेंज में आपको देखने को मिलेगा. तो इसके अलावा कुछ और प्रोमिनेंट हिल स्टेशंस है, जैसे फॉर एग्जांपल मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, ये सब का नेम और लोकेशन आप लोग मैप से लोकेट करके मुझे बताएंगे. Now let's see the outermost range of Himalaya, that is known as Shivalik. It extends over a width of 10 to 15 किलोमीटर, और इसका एवरेज हाइट जो है वो 900 मीटर से 1100 मीटर तक है. दिस रेंज इज कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स फ्रॉम द मेन हिमालयन रेंज. तो मेन हिमालयन रेंज से जितने नदियाँ डिसेंड होके आई हैं वो सब नदियों के द्वारा जितने सेडिमेंट्स लाया गया है वो सब सेडिमेंट्स का डिपोजिशन के वजह से इस माउंटेन रेंज का निर्माण हुआ है. सिंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ये जो नदियाँ अपने साथ जितने सेडिमेंट्स, पेबल्स लेके आए हैं ये सब जमा होते 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 ये जो शिवालिक रेंज बना है. और ये शिवालिक रेंज में आपको कुछ वैलीज भी मिलेंगे. दिस वैलीज आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एलुवियम, एंड द लॉन्गिट्यूडिनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक आर नोन एज डून्स. ये इस माउंटेन रेंज का एक फीचर है डून. लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में जो लैंडफॉर्म मिलता है उसको डून कहते हैं. ये डून में थिक ग्रेवल और एलुवियम का डिपॉजिट आपको मिलेगा. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वैली
लेसर हिमालय और शिवालिक के बीचों बीच में जो आपको प्लेन वैली मिलेगा, उस वैली में एलुवियल सॉयल, एलुवियम डिपॉजिट और ग्रेवल्स जमा होके रहते हैं। और इस प्रकार के वैली का कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। देहरादून, पोटली डून, पाटली डून, दीज आर सम ऑफ द वेल नोन डून्स विच आर सिचुएटेड बिटवीन शिवालिक एंड लेसर हिमालय। तो ये तो गया हिमालय का नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में डिवीजन। अब हम लोग देखेंगे कि हिमालय का ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में कैसे डिवीजन हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, हिमालय इज डिवाइडेड इनटू सेवरल नेम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। So these divisions have been demarcated by river valley. For example, the part of Himalaya lying between Indus River and Satluj River. इंदस रिवर से लेके सतलज रिवर के बीच में हिमालय के जो पार्ट है उसको ट्रेडिशनली पंजाब हिमालय कहा जाता है। और पंजाब हिमालय के साथ साथ उसका कुछ पोर्शन जो कश्मीर में है वो कश्मीर हिमालय, और जितना पोर्शन हिमाचल में है उसको हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। एंड द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन सतलज रिवर टू काली रिवर, सतलज रिवर से काली रिवर के बीच में हिमालय का जो पोर्शन है उसको कुमायून हिमालय कहा जाता है। काली रिवर और तीस्ता रिवर ये दोनों नेपाल हिमालय को डिमार्केट करते हैं, और हिमालय का जो पार्ट तीस्ता रिवर से लेके दिहांग रिवर के बीच में है उसको असम हिमालय कहा जाता है। क्योंकि आप देखें हैं मैप में हिमालय अरुणाचल प्रदेश तक स्ट्रेचड है, तो जितना पोर्शन असम के अंदर आता है तीस्ता रिवर से दिहांग रिवर के बीच में उसको असम हिमालय कहते हैं। ये सब हिमालय का रीजनल नेम्स है। वी विल स्टडी अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन हैज बीन फॉर्म्ड इन इंडिया बाय द इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम। डू यू नो अबाउट द रिवर सिस्टम? अ रिवर सिस्टम इज कॉल्ड द एरिया drained by the tributaries and the distributaries of a particular main river। एक मेन रिवर के द्वारा और उसके सहायक नदी, शाखा नदी, इन सब के द्वारा जो सिस्टम बना हुआ है उसको उस पर्टिकुलर रिवर का रिवर सिस्टम कहते हैं। और जितना एरिया ड्रेन्ड होते हैं, एक मेन रिवर, उसका ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी के द्वारा जितना एरिया ड्रेन्ड होते हैं वो पूरा एरिया को उस रिवर का ड्रेनेज बेसिन कहा जाता है। ठीक उसी तरह इस नॉर्दर्न प्लेन में इंदस रिवर का सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम अपने ट्रिब्यूटरीज के द्वारा, डिस्ट्रीब्यूटरीज के द्वारा जितना प्रभावित करते हैं वो सब एरिया नॉर्दर्न प्लेन है। और ये तीनों रिवर सिस्टम के द्वारा जितने एलुवियल सॉइल्स आते हैं वो सब एलुवियल सॉयल इस एरिया में डिपॉजिट होके ये वास्ट फर्टाइल प्लेन एरिया को क्रिएट किए हैं ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। ये 1-2 साल में नहीं बना है, ये मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये फर्टाइल प्लेन बना है। और इसका जो एरिया है इट इज़ नियरली 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया, एंड द प्लेन बीइंग अराउंड 2400 किलोमीटर लॉन्ग, 240 to 320 kilometer broad, densely populated physiographic division with a rich soil cover combined with adequate water supply and favorable climate. It is agriculturally a productive part of India. तो नॉर्दर्न प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो इसका वेस्टर्न पार्ट है इट इज़ कॉल्ड पंजाब प्लेन, जो मिडिल मोस्ट पार्ट है इट इज़ कॉल्ड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ the northern plain is known as Punjab plain. It is formed by Indus river and its tributaries. सिंध नदी और उसके जितने सब सहायक नदियां हैं वो सबके द्वारा ये पंजाब प्लेन बना है। ये पंजाब प्लेन का मोस्ट ऑफ द पार्ट आज पाकिस्तान में स्थित है। तो इंदस रिवर के जो 5 ट्रिब्यूटरीज हैं उनका नाम है झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज। ये जो 5 रिवर्स सिंध नदी के ट्रिब्यूटरीज है ये पंजाब होके फ्लो होके जाते हैं, जिसलिए पंजाब को लैंड ऑफ 5 रिवर्स, पंच आब या पंजाब कहा जाता है। तो ब्याज और सतलज ये दोनों नदी के जो बीच वाला जगह है, जैसे
5 नदियों का समाहार को पंजाब कहा जाता है, ठीक उसी तरह 2 नदियों के समाहार को दोआब कहा जाता है। तो ब्याज और सतलज ये दोनों नदी पंजाब में फ्लो होती हैं और दोनों के जो बीच में लैंड है, फर्टाइल लैंड है, दैट इज कॉल्ड दोआब। दैट मीन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 फ्लो ऑफ वाटर। तो गंगा प्लेन एक्सटेंड हो रहा है घाघरा और तीस्ता रिवर से शुरू करके। घाघरा और तीस्ता रिवर से शुरू हो जाता है हमारा गंगा प्लेन। इट स्प्रेड्स ओवर द स्टेट्स यूपी, द नॉर्दर्न इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, यूपी, कुछ पार्ट झारखंड का भी है और वेस्ट बंगाल। तो ये पूरा एरिया जितना स्टेट्स का नाम मैं बताया हूँ ये गंगा प्लेन के अंडर में आता है। तो एक ही नाम है गंगा प्लेन, सब लोग कहेंगे कि ये पूरा एक गंगा प्लेन है, इसके अंदर कोई फिजियोग्राफिक वेरिएशन नहीं है, तो ये सत्य नहीं, दिस इज नॉट ट्रू। दिस वास्ट प्लेन ऑल्सो हैज डाइवर्स रिलीफ फीचर्स। According to the variation in relief feature, the northern plain is divided into several regions, particularly 4 regions. The river, after descending from the mountains, deposit pebble in a narrow belt of 8 to 16 km in width, lying parallel to the slope of the Shivalik. It is known as Bhavar. जितने नदियाँ हिमालय माउंटेन से ओरिजिनेट होते हैं वो सब फुट हिल में पहुंचने के बाद अपने साथ जितने सब गोल गोल पेबल्स लेके आते हैं, राउंडेड स्टोन्स, वो सब राउंडेड स्टोन शिवालिक का फुट हिल में जमा करते जाते हैं। तो शिवालिक के फुट हिल में 8 किलोमीटर टू 16 किलोमीटर चौड़ा का एक नैरो बेल्ट बना हुआ है, वो छोटे छोटे पेबल्स का। तो छोटे बड़े पेबल्स का, पत्थरों का जो नैरो बेल्ट शिवालिक के फुट हिल में बना हुआ है उसको भावर कहा जाता है। और ये भावर का खासियत क्या है कि जितने नदियां हिमालय से ओरिजिनेट होकर आती हैं वो सब शिवालिक का फुट हिल पर आने के बाद डिसअपियर हो जाते हैं। ये जो भावर के अंदर वो लोग एंट्री कर जाते हैं और बाहर उनका एग्जिस्टेंस दिखाई नहीं देता है। और बाद में ये भावर जो 8 से 16 किलोमीटर का चौड़ा है उसका जहाँ पे एंड होता है वहीं से वो सब नदियाँ फिर से री ओरिजिनेट होने जैसे दिखाई देते हैं। द स्ट्रीम्स डिसअपियर before Bhavar and at the end of Bhavar they again re-originate। भावर के बाहर जब ये नदियाँ फिर से री-ओरिजिनेट होती हैं तब वहाँ पे ये लोग एक वेट, स्वाम्पी एंड मार्शी रीजन क्रिएट करते हैं। बहुत ही गीला दलदल से भरा हुआ एक लैंडफॉर्म वहाँ क्रिएट होता है जिसको हम लोग तराई बेल्ट कहते हैं। तो तराई रीजन इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द फॉरेस्ट वेजिटेशन व्यू पॉइंट। ये तराई रीजन में हमेशा मिट्टी गीला रहने के वजह से, स्वाम्पी रहने के वजह से वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट क्रिएट हुआ है। आप लोग जानते हैं दुधवा नेशनल पार्क ये तराई रीजन पे ही स्थित है। नाउ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन वी कैन सी इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियम। ये जितने हिमालयन रिवर्स है वो अपने साथ एलुवियल सॉइल को लेके आते हैं और whenever flood comes in the river, the flood water engulfs the both side of the bank and it deposits the sediments, the alluvial deposits, and the flood water again retreats to the river in such a way up to। तो हिमालयन रिवर के द्वारा जितने एलुवियल डिपॉजिट्स आती है वो सब डिपॉजिट नदी के दोनों साइड में जमा होते जाता है और ऐसे लंबे समय तक, लाखों साल तक ये एलुवियल सॉइल्स रिवर के बोथ साइड बैंक में डिपॉजिट होते गया और वो डिपॉजिट्स आगे एक्सटेंड होते होते गया, जिसके कारण ये नॉर्दर्न प्लेन का जो वास्ट लैंडफॉर्म है वो क्रिएट हुआ है जो कि ओल्डर एलुवियम से बना हुआ है। इट लाइज एबव द फ्लड प्लेन ऑफ द रिवर। रिवर का जो फ्लड प्लेन है बोथ साइड ऑफ द बैंक, वो फ्लड प्लेन से ऊपर आगे के तरफ ये ओल्ड एलुवियम जमा होते गया है, एक टेरेस लाइक फीचर क्रिएट किया है जिसको हम लोग जियोग्राफी के लैंग्वेज में भांगर कहते हैं। तो भांगर इज द डिपॉजिट ऑफ ओल्डर एलुवियम ऑन द बोथ साइड ऑफ द रिवर बैंक। और रिवर के दोनों बैंक में जो न्यू एलुवियम हर साल फ्लड आने के दौरान, बाढ़ के समय में, बाढ़ का पानी जब नदी के दोनों साइड एनगल्फ होता है वो अपने साथ जितना एलुवियम लाता है वो वहाँ जमा कर देता है। उस एलुवियम को न्यू एलुवियम या खादर कहते हैं।
तो खादर एंड वांगर ये दोनों इस नॉर्दर्न प्लेन का एक प्रोमिनेंट फीचर है। जो ओल्ड एलुवियम से बना हुआ एरिया है उसको भांगर कहते हैं और न्यू एलुवियम से जो बना हुआ एरिया है उसको खादर कहते हैं। इसके अलावा और एक फीचर है, द सॉइल इन सम पर्टिकुलर रीजन आर हैविंग कैलकेरियस डिपॉजिट। कैलकेरियस डिपॉजिट जिस सॉइल में है उसको कंकर कहा जाता है। द रीजन विच इज हैविंग कैलकेरियस डिपॉजिट इज नोन एज कंकर। So students, by this our northern plain has been completed and we will study in the next lesson